Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss pricing decisions, and as such, we are not going to discuss the pricing decision with respect to the marketing, because pricing is a part of the marketing subject. But we are going to discuss it with respect to cost management. So, pricing decisions and cost management. As we are taking the theme of the strategic emphasis all over our topics. So again, we are going to take that same managerial emphasis or the strategic emphasis in our pricing decisions as well. And pricing decisions, obviously, we are going to discuss with some help from the cost accountants. So cost accountants जो हैं वो किस तरह से pricing decisions के अंदर जो है वो helpful हो सकते हैं, how they can provide some data to and information to the top management for the or the marketing personnel to make the pricing decisions more easy. So let's move on to some topics. Here are some learning objectives. We will be seeing some target costing, how it is being performed, and then will be seeing some pricing approaches, cost plus approach for the pricing, life cycle costing, and so on. Let's move on to major factors that affect pricing decisions. So this is a bit relevant thing that we could discuss from the accountant's point of view, that how companies price a product or services ultimately depends on demand and supply for it. Companies जो है वो pricing कैसे करती हैं ये depend करता है उस product की demand and supply पे. Obviously एक product जो है उसकी positioning, एक brand की positioning जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी कस्टमर्स के जो है वो माइंड्स में बहुत अच्छी है, उस पोजीशनिंग की बुनियाद पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई प्राइस भी चार्ज कर सकती है, ऑल्दो उसकी जो है वो जो है मटेरियल की वैल्यू इतनी ज़्यादा अंदर ना हो. And there are three types of influences on demand and supply are customers, competitors and costs. So customers जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के उनकी वजह से जो है वो डिमांड पैदा होती है, तब जो है ऑर्गेनाइजेशन उसकी सप्लाई प्रोवाइड करती है. कंपेटिटर्स जो हैं उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट को देख के जो है कंपनी को अपनी प्राइसेस सेट करना पड़ती हैं. एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट जो कि हमारा इधर ज़्यादा मेजर कंसर्न है, जिसको हम देखेंगे. तो इन्फ्लुएंसेस ऑन डिमांड एंड सप्लाईज. Customers influence price through their effect on the demand for a product or service based on factors such as product features and quality, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की. Competitors influence price through their technologies, plant capacities and operating strategies which affect their costs. आपके competitors जो हैं वो अपनी plant की capacity को increase करके, bulk production करके और अपनी better operating strategies की वजह से अपनी कॉस्ट को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उस कम करने के नतीजे में आपको भी अपनी प्राइस को कम करना पड़ सकता है. तो दीज आर द इन्फ्लुएंसेस व्हिच आर अफेक्ट ऑन द प्राइस. एंड फाइनली द कॉस्ट इन्फ्लुएंस प्राइसेस बिकॉज दे अफेक्ट द सप्लाई. द लोअर द कॉस्ट द ग्रेटर द क्वांटिटी अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई. तो जितनी कॉस्ट कम होगी, कंपनी चाहेगी कि जो है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की प्रोडक्ट्स को यूनिट्स को प्रोड्यूस करे और उसको सप्लाई करे. Now we move on to costing and pricing for the long run. So there have to see the types of pricing, which are short run pricing and long run pricing. As you can see that short run pricing decisions have a time horizon of less than 1 year. अकाउंटिंग के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल या उसके कम अरसे को शॉर्ट रन कहा जाता है. दिस इज़ नॉट दैट ऑफ द इकोनॉमिक्स वाला ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टिपिकली नहीं है. तो एंड इंक्लूड्स डिसीजन सच एज प्राइसिंग ए वन टाइम ओनली, स्पेशल ऑर्डर विद नो लॉन्ग रन इम्प्लीकेशंस. जैसे कि आपने जो है ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया हुआ है रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर
कि अगर एक हमने वन टाइम स्पेशल ऑर्डर अगर हमने करना है तो उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म यानी अपनी फिक्स कॉस्ट को नहीं देखते, उसमें हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को टेक इनटू अकाउंट करके, रेलेवेंट कॉस्ट को टेक इनटू अकाउंट करके डिसीजन कर देते हैं, जो कि हमें वक्ती तौर पे बेनिफिशियल हो जाता है। ऑल्दो लॉन्ग रन के लिए हमारी इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिस्टर्ब भी हो सकती है। एडजस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स एंड आउटपुट वॉल्यूम इन ए कम्पिटिटिव मार्केट, तो हम प्रोडक्ट मिक्स को जो है एडजस्ट करते रहते हैं और आउटपुट वॉल्यूम को भी जो है एडजस्ट करते हैं एक कम्पिटिटिव मार्केट में। लेकिन लॉन्ग रन प्राइसेस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिजाइंड टू बिल्ड अप लॉन्ग रन रिलेशनशिप विद कस्टमर बेस्ड ऑन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल प्राइसेस। इसके अंदर जो है अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप बनाना होता है और उसमें प्राइसेस का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और प्रिडिक्टेबल होना ज़रूरी है, और मैनेजर्स प्रेफर है स्टेबल प्राइस, और मैनेजर्स भी जो है स्टेबल प्राइस को पसंद करते हैं। रोज़ बरोज़ बदलती हुई जो है प्राइस ये कोई अच्छी बात नहीं है। As you are students of accounting, so you have learned it in your earlier cost accounting course. What is cost allocation? Cost allocation जो है हम इस टॉपिक के अंदर इस वजह से इसको रेलेवेंट करके इसको पढ़ रहे हैं कि हमारी कॉस्ट अगर करेक्ट होगी तो फिर ही हम सही प्राइसिंग कर पाएंगे। So recall that indirect cost of a particular you remember that there were two types of cost, direct cost and indirect cost. तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वो होती थी जो कि इजीली ट्रेसेबल होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर कॉस्ट दैट आर रिलेटेड टू दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू इट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, तो कॉस्ट इफेक्टिव वे के साथ उसको नहीं किया जा सकता, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उस कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। एलोकेट करने के मेथड्स होते हैं। द कॉस्ट ऑफन कंप्राइज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉस्ट असाइंड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मली इसके अंदर आपको पता है ओवरहेड्स शामिल होते हैं, तो ये एक बड़ी मिकदार में हो सकती है। कॉस्ट एलोकेशन इन्फ्लुएंस मैनेजर्स कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजंस एज वेल एज द प्रोडक्ट्स दैट मैनेजर्स प्रमोट, तो उसमें जो है डिपेंड करता है कंपनी का कॉस्ट मैनेजमेंट के डिसीजंस जो है उस पर असरअंदाज होती हैं ये कॉस्ट एलोकेशंस, तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होना। Now we come to the purposes of cost allocation. कॉस्ट एलोकेशन को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। कॉस्ट एलोकेशन जो है हमें बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस करने में हेल्प करती है। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स शामिल हैं? टू डिसाइड ऑन द सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब हम सही कॉस्ट एलोकेट करने की पोजीशन में होंगे, डायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे, तो सही कॉस्ट जब पता चल जाएगी तो हम सही सेलिंग प्राइस पे पहुंचने के काबिल होंगे। टू डिसाइड वेदर टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट फीचर। अगर हम जो है एक ही प्रोडक्ट में ऑलरेडी अपनी चल रही प्रोडक्ट में एक नया फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कॉस्ट एलोकेशन जो है उसमें कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट का इजाफा हो रहा है। इन द सेम वे टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज, इसके ज़रिए क्या होगा? टू एनकरेज द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर सिंपलर टू मैन्युफैक्चर और लेस कॉस्टली टू सर्विस। तो इसके अंदर जो है कंपनी इस तरह के डिज़ाइन बनाना पसंद करेगी कि जो कि वो सिंपल टू मैन्युफैक्चर हो और उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो इसके ज़रिए जो है प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा होगा। Third point is that to justify costs or compute reimbursement amounts. इसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि लॉ जो है वो डिमांड करता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको कॉस्ट करते हुए वो फेयर प्राइस पे उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, और अगर हम जो है सही तरह से कॉस्टिंग नहीं करते, सही एलोकेशन नहीं करते, किसी प्रोडक्ट को हमने ओवर एलोकेट कर दिया, दूसरी प्रोडक्ट को अंडर एलोकेट कर दिया, तो इस तरीके से जो है हम एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं, जो कि जो है वो मार्केट के हिसाब से मुनासिब नहीं है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। Let's move on to some alternative long run pricing approaches, and there are two basic categories. How should managers use product cost information to price their products? There are two different approaches for pricing decisions. One is market based approach and the second one is cost based approach. जैसे कि लफ्ज़ ज़ाहिर है
कि मार्केट बेस्ड अप्रोच में मार्केट को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं, व्हाट आवर कस्टमर्स वांट एंड हाउ कंपेटिटर्स विल रिएक्ट टू व्हाट वी डू, व्हाट प्राइस शुड वी चार्ज। तो इसकी अब हम डिटेल की तरफ आएंगे थोड़ी देर में। द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच जो है वो आस्क गिवन व्हाट इट कॉस्ट अस टू मेक दिस प्रोडक्ट, हमें एक ख़ास प्रोडक्ट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में क्या कॉस्ट आती है, और एक मखसूस कॉस्ट जब आती है तो व्हाट प्राइस शुड वी चार्ज, यानी कि ये हमारी कॉस्ट है, इसके ऊपर हम कितना अपना प्रॉफिट ऐड करें, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वगैरह जो है ये अप्रोच यूज की जाती है। एंड दैट विल रिकूप आवर कॉस्ट एंड अचीव टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक जो है टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेट कर लिया जाता है और प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऊपर एक मखसूस परसेंटेज ऐड करके, दैट इज़ आवर प्रॉफिट मार्जिन, और इस तरीके से ये अप्रोच यूज़ की जाती है। Now we come to first point, which is markets based prices, and companies operate in different markets which affect the approach they will use for pricing. तो जो उस मार्केट में अप्रोच यूज हो रही है वो कंपनी भी वही अप्रोच यूज करेगी। कंपनीज ऑपरेटिंग इन competitive मार्केट चूज द मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच के अंदर जो प्राइस मार्केट में चल रही है वही जो है दूसरों सारे प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ती है। कंपनीज इन दीज मार्केट्स मस्ट एक्सेप्ट द प्राइसेस सेट बाय द मार्केट। और इसमें क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपेटिटर्स आर वेरी सिमिलर। एक जैसी प्रोडक्ट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन का फर्क नहीं होता, और उसमें समटाइम्स सभी सेलर्स जो है वो अपने फ़ायदे के लिए एक अच्छा मार्जिन सेट करके प्राइसिंग सेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ our first part of the pricing, and we will be meeting again in the second lecture. Till then, Allah Hafiz.